Assalamu alaikum students, hope you're all doing fine. This is Zinia here and I warmly welcome you to another video of STEM International English 7 book का chapter related to fire जो था उसकी पिछले वीडियो में हमने एक्सरसाइज स्टार्ट कर दी थी. This is the second portion और यहाँ पे हम क्या करने जा रहे हैं कि हम गो ग्रामर पार्ट स्टार्ट करेंगे और गो ग्रामर में हम देखेंगे कि आज हम कौन कौन सी ग्रामेटिकल डिफरेंट पार्ट्स ऑफ राइटिंग जो है उसको एक्सप्लोर करते हैं. So without further ado, आइए dig in. Alright students, so we are starting with the Go Grammar part for this particular video and the first thing that we're going to do is position of adjectives. So let's see कि किस तरह से इनकी positioning होती है. Adjectives can appear in different positions in a sentence depending on how they describe a noun. एक noun को किस तरह से वो describe कर रहे होते हैं उसकी basis के ऊपर उसकी एक sentence में एक जुमले में जो है positioning differ कर जाती है. कैसे आइए देखें. The first one is attributive adjective. An attributive adjective comes before a noun it describes. एक attributive adjective की जो position होती है sentence में वो हमेशा उस noun से पहले होती है जिसकी वो description आप तक पहुंचाता है. Example के तौर पे she bought a gorgeous dress. तो dress जो है उसकी description है कि it is gorgeous. So gorgeous dress से पहले लिखा आ रहा है. I saw a bright star last night. तो वो star को describe किया जा रहा है. So bright is the attributive adjective used here. He lives in a small house. House की जो है वो उससे पहले attributive adjective उसका small जो है वो लिखा गया. Then the second type is predicative adjectives. A predicative adjective comes after a linking verb is, am, are, was, were, look, feel, seem. तो ये वो चीज़ें हैं या ये linking verbs हैं जिनके बाद जो है वो predicative एडजेक्टिव आता है. एग्जाम्पल के तौर पे द चाइल्ड लुक्स टायर्ड. किस तरह का वो दिख रहा है. देखिए लुक था वो लिंकिंग वर्ब और उसके बाद जो है वो हमने प्रेडिकेटिव एडजेक्टिव डाला विच इज टायर्ड. देन द वेदर इज प्लेजेंट टुडे. राइट, इट इज प्लेजेंट टुडे एंड देन वेदर के बाद ये बात हुई है, ये वेदर की डिस्क्रिप्शन है प्रेडिकेटिव एडजेक्टिव से. शी फेल्ट नर्वस बिफोर द टेस्ट. अब ये शी उसकी पर्टिकुलर स्टेट है कि नर्वसनेस की, तो देयरफॉर बाद में आ रही है after a linking verb. She felt nervous before the test. Post positive adjectives होते हैं. Post positive adjective comes immediately after the noun it describes. Its usage is less common. पहले noun और linking verb के बाद जो है predicative adjective आ रहा था. इसमें post positive जो है वो noun के बिल्कुल बाद इस्तेमाल हो जाता है. जैसे कि someone responsible must answer the question. तो वो someone को describe किया जा रहा है, लेकिन someone से पहले अगर आता तो वो attributive adjective हो जाता, बाद में आ रहा तो वो post positive adjective है. We need a room available for the meeting. एक ऐसा रूम जो कि अवेलेबल है. The food left was shared with others. जो रह गया था खाना वो दूसरों के साथ शेयर किया गया. इसी तरह से what you're required to do is to underline adjective in each sentence and write its type, attributive, predicative or post positive. The flowers are fresh. हम देख रहे हैं linking verb के बाद आ रहा है तो it's a predicative adjective. She wore a red scarf. Scarf से पहले उसकी description आ रही है तो attributive adjective. And then I need something useful. Something useful, right? उसके बिल्कुल साथ है, so post positive adjective. Then the sky looks clear. फिर sky looks linking verb के बाद आया तो this is a predicative adjective. Conjunctions और transitional devices क्या होती हैं जनाब? Conjunctions and transitional devices are used to connect ideas and making writing smooth and meaningful. ऐसे words जो कि ideas को connect करने में मदद दें या फिर writing का जो एक पूरा का पूरा style है जो लिखा गया है उसको ज़्यादा smoothness provide करें या ज़्यादा meaningfulness उसमें डालें, तो उन चीज़ों को कि ये किस चीज़ के इस्तेमाल से हो रही हैं? कंजंक्शंस या फिर ट्रांजिशनल डिवाइसेस से. कंजंक्शंस फॉर एडिशन. दीज आर यूज्ड टू ऐड इन्फॉर्मेशन. ऐसे कंजंक्शंस जो कि इंफॉर्मेशन के ऐड के लिए इंफॉर्मेशन से ऐड करने के लिए इस्तेमाल हो रहे हैं उनको कंजंक्शंस फॉर एडिशन कहते हैं. कॉमन वर्ड्स कौन से यूज़ होते हैं एज कंजंक्शंस फॉर एडिशन एंड ऑल्सो मोर ओवर इन एडिशन बिसाइड एक्सेट्रा. एग्जाम्पल के तौर पर शी एंजॉयज रीडिंग एंड शी लव्स राइटिंग नॉवेल्स or she loves writing stories. He completed his homework. Moreover, he revised his notes. In addition, the school arranged a science fair. See, कोई भी added information हमने दिखानी है. Then we have conjunctions which are used for sequence to show order or steps. The common words कौन से हैं? First, then, next, before, and finally. Example के तौर पे first, wash your hands before eating. Right? Read the instructions, then answer the questions. Finally, submit your work to the teacher. तो ये sequence बता रहा है कि सबसे end पे आपने जो है वो अपना काम जो है वो टीचर को सबमिट करवा देना है, so on and so forth. इसी तरह से on the very next page on page 68 we are provided with a few blanks और उसके अंदर हमने suitable conjunctions या फिर transitional words जो हैं वो दिए गए boxes में से pick करके choose करके जो है वो use करने हैं. She packed her bag, dash, she checked her homework. She packed her bag, then she checked her homework. हो सकता था, ठीक है. और फिर आगे देखते हैं. Dash, the teacher explained the lesson.
फर्स्ट द टीचर एक्सप्लेन द लेसन हो सकता है. ही इज़ पोलाइट डैश हेल्पफुल, ही इज़ पोलाइट एंड हेल्पफुल हो सकता है. डैश हीट द वाटर इन द पैन, तो इसमें हम कह सकते हैं फाइनली हीट द वाटर इन द पैन, और फर्स्ट हीट द वाटर इन द पैन, और मोर ओवर हीट द वाटर इन द पैन. ठीक है, या फिर ऑल्सो हीट द वाटर इन द पैन, तो कुछ भी आ सकता है. फिर द टीम प्लेड वेल डैश दे वन द मैच, द टीम प्लेड वेल मोर ओवर दे वन द मैच. Dash we reached home safely. Finally we reached home safely. See, इस तरह से you can use the provided conjunctions and transitional verbs to complete these sentences. The next task regarding this is to write a short paragraph जो कि 4 sentences पे 4 जुमलों पे मुश्तमिल होगा, describing your daily routine using at least 3 conjunctions or transitional words. तो आपने एक छोटा सा 4 sentences का paragraph लिखना है जिसमें आपने अपनी daily routine को describe करना है, और उसमें at least आपने 3 conjunctions या फिर transitional words ज़रूर इस्तेमाल करने हैं. And then we jump on with the adjectival phrase. Adjectival phrase क्या होता है? An adjectival phrase is a group of words that describes a noun or pronoun in a sentence. Example के तौर पे the students were very excited about the trip. तो हम देख रहे हैं कि ये एक group of word है जो कि उस स्टूडेंट्स को जो है वो डिस्क्राइब कर रहा है, या फिर ये नाउन भी है, किसी प्रोनाउन को भी जो है वो डिस्क्राइब कर सकता है. तो द स्टूडेंट्स वर वेरी एक्साइटेड अबाउट द ट्रिप. स्टूडेंट्स की आ गई यहाँ पे डिस्क्रिप्शन, राइट, और वेरी एक्साइटेड एक फ्रेज बन गया, एडजेक्टिवल फ्रेज हो गया बिकॉज डिस्क्रिप्शन दे रहा है. ही इज़ एक्सट्रीमली प्राउड ऑफ हिज सक्सेस, अगेन एडजेक्टिवल फ्रेज हो गया. द टीचर प्रेज द हार्ड वर्किंग स्टूडेंट्स, एडजेक्टिवल फ्रेज हो गए. शी वॉज टू नर्वस टू स्पीक, टू नर्वस टू स्पीक जो है वो एक एडजेक्टिवल फ्रेज के तौर पर इस्तेमाल हो गया. Now what is asked of us is to underline the adjectival phrase in each sentence which is provided below. The first one is the children were very happy today. Very happy आ जाएगा. He bought a remarkably cheap watch. Remarkably cheap हो जाएगा. She is quite confident about her answer. Quite confident would be underlined. And then there is another task which is to replace the adjective in bold with an adjectival phrase of the same meaning. He is a brave soldier. He is a very brave soldier, yes, or very courageous soldier. She gave a kind reply. She gave a very kind reply, or she gave a very naive reply, yes. It was a cold morning. It was a very chilly morning. How about that? तो इस तरह से करके you can think about more adjectival phrases and add them to these sentences. जनाब इसी के साथ हम आ जाते हैं towards another tense type of sentences which is future continuous tense. So future continuous tense shows an action that will be in progress at a specific time in the future. Future में किसी particular time पे कोई काम और उसकी progress के बारे में बात हो रही हो तो फिर उसके लिए जो tense इस्तेमाल किया जाता है to create a sentence that is future continuous tense. इसकी भी again जिस तरह से बाकी हमने sentence tenses की structures को देखा है तो affirmative, interrogative और negative structures होते हैं. तो हम देख लेते हैं कि क्या है. फर्स्ट ऑफ ऑल अफर्मेटिव के अंदर हम देख रहे हैं सब्जेक्ट है फॉलोड विद विल और शैल, एंड देन देयर इज अ बी इन्वॉल्व, राइट, और फिर उसके बाद बेस फॉर्म ऑफ द वर्ब आईएनजी और ऑब्जेक्ट. और जब इसे ही इसको हमने इंटरोगेटिव में करना तो सेम स्ट्रक्चर लेकिन सब्जेक्ट और विल शैल की जो प्लेसमेंट है उसको शिफ्ट कर देना. एंड देन इन द नेगेटिव थिंग वी विल डू व्हाट, सब्जेक्ट विल शैल बी के पहले नॉट, वर्ब आईएनजी और फिर ऑब्जेक्ट. तो एग्जाम्पल हम तीनों की देख लेते हैं. अफर्मेटिव है तो शी विल बी स्टडिंग एट नाइट. एग्जाम्पल इंटरोगेटिव की है तो विल दे बी ट्रैवलिंग टुमारो. और इसी तरह से एग्जाम्पल नेगेटिव की है तो ही विल नॉट बी वेटिंग फॉर अस. अब what we are required to do is we have to read the following sentences which are provided on page 69 top, जो हमें टॉप पे बिल्कुल है. and notice the use of future continuous tense. The first one is we will be preparing for the test in the evening. देख रहे हैं कि किस तरह से future continuous tense का इस्तेमाल किया गया है. The team will be practicing on the ground. She will be visiting her grandparents next week. इसी तरह से हमें जो है वो verbs provided हैं. जो सिक्स्थ टास्क है चेंज द वर्ब्स इनटू फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस, वो हमें ब्रैकेट्स में प्रोवाइडेड है ऑन दी वेरी राइट साइड, एक्सट्रीम राइट साइड पे, और हमने इनको इन सेंटेंसेस के अंदर फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस के तौर पे यूज़ करना है. दे डैश क्रिकेट इन द मॉर्निंग, प्ले है तो दे विल बी प्लेइंग क्रिकेट इन द मॉर्निंग. ठीक. आई डैश फॉर माई एग्जाम टुमारो नाइट, आई विल बी स्टडिंग फॉर माई एग्जाम टुमारो नाइट. शी डैश डिनर एट 8 PM, शी विल बी कुकिंग डिनर एट 8 PM. And then we move on towards our seventh task which is write 5 sentences about your future plan using
यूजिंग द फ्यूचर कंटिन्यूस टेंस। आपके कोई भी फ्यूचर प्लान्स हों तो आप उसके बारे में 5 सेंटेंसेस लिखेंगे। 5 डिफरेंट फ्यूचर प्लान्स भी हो सकते हैं, लेकिन उन सबको आपने फ्यूचर कंटिन्यूस टेंस में ही लिखना है। एंड देन वी हैव अ वेरी शॉर्ट पार्ट रिलेटेड टू पंक्चुएशन, तो आइए उसको भी देख लेते हैं। और इसमें हम जो पंक्चुएशन एक्सप्लोर करने जा रहे हैं दैट इज़ हाइफन। हाइफन का कहाँ पे इस्तेमाल होता है? हाइफन इज़ अ पंक्चुएशन मार्क यूज्ड टू जॉइन वर्ड्स और पार्ट्स ऑफ वर्ड्स। कोई भी दो अल्फाज को अगर आपस में जोड़ना हो या फिर पार्ट्स ऑफ वर्ड्स को आपस में जोड़ना हो तो उसके लिए जो पंक्चुएशन मार्क इस्तेमाल होता है दैट इज़ ए हाइफन। क्या है चीज़? यूजेस इसके टू फॉर्म कंपाउंड एडजेक्टिव्स बिफोर अ नाउन, जिस तरह से हमने पिछले सेंटेंसेस में भी देखा था। हार्ड वर्किंग स्टूडेंट है वो भी दिया हुआ है, वेल नोन ऑथर है वो भी यहाँ पे हमारे पास आ रहा है। एंड देन इट इज़ ऑल्सो यूज विद नंबर्स फ्रॉम 21 to 99, जहाँ पे 2 नंबर्स हो रहे हैं अपनी काउंटिंग में, तो वहाँ पे भी हम हाइफन का इस्तेमाल करते हैं। देन व्हेन राइटिंग फ्रैक्शंस इन वर्ड्स 1/2, 2/3, 1/4, 3/4 etc. To avoid confusion in spelling, re-enter, cooperate, ठीक है, आप इसको अदरवाइज भी लिख सकते हैं, लेकिन उस कन्फ्यूजन को कम करने के लिए आप हाइफन डाल के ऐसे भी लिख सकते हैं जैसे इज शोन। एग्जाम्पल्स के तौर पे शी बॉट अ सेकेंड हैंड बाइसिकल, प्लीज़ ब्रिंग 24 नोटबुक्स, ही इज़ अ काइंड हार्टेड पर्सन। आप देख रहे हैं कि किस तरह से हाइफन का डिफरेंट तरीकों से इस्तेमाल किया गया है। नाउ व्हाट यू आर सपोज्ड टू डू इन द 8th एंड फाइनल टास्क इन दिस पर्टिकुलर पोर्शन इज टू राइट 5 सेंटेंसेस ऑफ योर ओन यूजिंग हाइफन्स करेक्टली। Alright, now that we're done with this portion, हमने देखा कि एडजेक्टिव्स itself एडजेक्टिव्स तो हैं ही, लेकिन उसकी फर्दर टाइप्स भी हैं। उन फर्दर टाइप्स को किस तरह से डिफरेंटली जो है वो अपने सेंटेंस स्ट्रक्चर का पार्ट बनाते हैं। मोर ओवर हमने कंजंक्शंस और ट्रांजिशनल डिवाइसेस का भी इस्तेमाल देखा कि किस तरह से करना है। उसमें भी डिफरेंट टाइप्स हैं आपके कंजंक्शंस की, आपकी ट्रांजिशनल डिवाइसेस की, और उनको किस तरह से आपने अपने सेंटेंसेस में यूज़ करना है। एंड लास्टली हमने एक नए तरीके का सेंटेंस टेंस जो है वो पढ़ा, दैट वाज फ्यूचर कंटिन्यूस टेंस, और उसको किस तरह से हम यूज़ करते हैं और क्यों यूज़ करते हैं दैट टू। छोटी छोटी टास्क्स भी हैं जो कि आपने खुद भी करनी है, ब्रेनस्टॉर्म करना है, सोचना है, समझना है, कहीं और से आपको सोर्स मिले इन चीज़ों को फर्दर सीखने का, तो उसको भी जो है ज़रूर कंसिडर करना है। एंड विद दैट नाउ विल मीट इन द नेक्स्ट वीडियो विद द नेक्स्ट पोर्शन ऑफ दिस पर्टिकुलर एक्सरसाइज। टिल देन टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।